Hello dear students. So now onwards we will start our new topic, and this new topic is a image formation by a spherical mirror. So it is a very important topic because each year question comes from this topic. So before going to form a image from the spherical mirror, we have to study that what are the rules. So in this slide we will study the rules of image formation. So first rule is, when a ray is coming parallel to the principal axis, then after reflection this ray will pass through the principal focus of a concave mirror, or it appears to pass through the principal focus of a convex mirror. Why it is happening? Because in case of a concave mirror, a principal focus is a real one, which we already studied, and in case of a convex mirror the principal focus is a virtual. So what happen when a ray comes parallel to the principal axis and incident on a concave mirror, then it reflects back and pass through the principal focus. So this is a reason by which we say that concave mirror is a converging mirror. Concave mirror is a converging mirror. And second thing, in case of a convex mirror, when a ray is coming parallel to the principal axis, then after incidenting on a convex mirror it diverges. As you see in a diagram, it diverges. So if we extend it in a backward direction, so when we extend it in a backward direction, it cuts the principal focus. It appears to cut the principal focus. So that because concave in case of a concave mirror, principal focus is a real one, so that a ray which is coming parallel to the principal axis, after reflection from the concave mirror, it actually pass through the principal focus. And in case of a convex mirror, the ray appears to pass through the principal focus of a convex mirror. So this is a first rule. Now second rule, in case of a second rule, if a ray is coming from the center of curvature and it falls on the mirror, on the surface of a mirror, then it reflect back along the same path. Why in case of a concave mirror, also in case of a convex mirror? Why it is happening? It is happening because of a rule we studied in a question number 3 of our DPP. In a subjective part, in subjective question section, we have a question number 3, in which if a ray incidenting normally on a mirror, then in that case the value of incident angle is 0, so that the value of reflected angle is also 0. So our rays reflect back on a same path. So please remember, when in case of a mirror, when a ray, in case of a spherical mirror, when a ray is coming from the center of curvature and incidenting on a mirror, then it incident normally. क्या होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है तो ये रे जब फॉल होगी मिरर के ऊपर, तो ये कैसी फॉल होगी? नॉर्मली. तो नॉर्मली जब भी मिरर के ऊपर कोई रे फॉल होती है तो उस केस में जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्या होता है? 0 होता है. इसलिए रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होता है? 0, और वो वापस उसी पाथ पे वापस आ जाती है. आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो सब जो हमारी फर्स्ट DPP थी उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट का थर्ड क्वेश्चन था, उसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर तो वापस वो उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. सो हियर दिस इज अ second rule, that when a ray incident through the center of curvature falls normally and reflect back along the same path. So this is second rule. Now third rule is, a ray incident through the focus is reflected parallel to the principal axis. It means कोई भी ray आ रही है, if a ray is coming from the principal focus, if it is coming from the principal focus or it appears to coming from the principal focus, so after reflection it will pass parallel to the principal axis. So these are the 3 rules for the concave mirror and a convex mirror also. So when we will form a image, when we will draw a ray diagram, then we have to remember these 3 rules. These 3 rules will govern the formation of image from the spherical mirror. Let's move to the next slide.
So dear students, now in this slide we will study the image formation via concave mirror. So what we will do, we place a object on different positions and then we will form the image. Now the important thing is that when we form an image, then after forming an image we need to find out three things. Three things are: first is the what is the position of an image. First we find out what is the position of an image. Second we find out what is the size of an image. And third we find out what is the nature of an image. So three things we will find out. One is position of the image, second one is size of the image, and third one is the nature of an image. So let's start with the image formation for a concave mirror. So first case, so in first case, if an object is placed at infinity, if an object is placed at infinity, so when an object is placed at infinity, then we consider that the rays coming from the object is parallel to the each other. So as shown in a diagram, the two incident rays are coming, and these two incident rays are coming parallel to the principal axis. So as we have a rule that if the rays are coming parallel to the principal axis, then after reflection they will pass through the principal focus in case of a concave mirror. So as you see, the ray is coming and ray are incident on a, both the rays are incident on a concave mirror, and after incidenting it will reflect back and pass through the principal focus. So where the image will form? The image will form where both these rays will cut each other. Please remember, इमेज कहाँ पर बनेगी? इमेज वहाँ बनेगी जहाँ पर ये दोनों रेज जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही है? कट कर रही हैं. सो ये दोनों जो रेज आ रही हैं, दोनों रेज कहाँ पर कट कर रही हैं? एक दूसरे को प्रिंसिपल फोकस पर. सो द इमेज विल फॉर्म एट द प्रिंसिपल फोकस. आई होप यू all understand how the image will form. Now there is a question of some students that how many rays are coming from the object. So remember that we studied that there are two types of object. दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं और एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं. सो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो खुद लाइट इमिट करते हैं, जैसे कि सन है. सो सन इज अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज इमिटिंग हिज ऑन लाइट. Now he can emit light in any direction, and there are number of rays can be produced, can be emitted by the sun, and sun is a luminous object. Now consider a non-luminous object. Let there is a table. So table is a non-luminous object. But what happen when a light ray incident on a table? Table also reflect back the light. So it can also reflect back the number of light rays. So we have to consider only two light rays, because to form an image we only need the two light rays, so that these light rays will cut each other. तो ये अच्छे से समझ लें आप. जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो होते हैं, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस. तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद अपनी लाइट इमिट करते हैं, और नॉन ल्यूमिनियस वो होते हैं जो खुद की लाइट इमिट नहीं करते, पर जो दूसरी लाइट उनके ऊपर आ रही है उसको इमिट करते हैं. अब नंबर ऑफ रेज वो बहुत सारी इमिट कर सकते हैं, बहुत सारी नंबर ऑफ रेज इमिट कर सकते हैं, बट हमें क्या लेना है? सिर्फ दो ही रेज लेनी है, ताकि जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो और जहाँ पर भी वो कट करें हमारी इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको. आगे बढ़ते हैं. तो जो पहला वाला जो केस लिया है हमने, उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? इनफाइनाइट पर है. जैसे सन है, सन इनफाइनाइट पर है. अब सन से कोई सी दो रेज आ रही हैं, तो ये जो रेज होंगी ये क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. तो ये पैरेलल रेज जो आ रही हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल है. तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ होंगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी. तो ये जहाँ पर भी एक दूसरे को कट करेगी वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी. ठीक है. तो अब इस इमेज का साइज़ क्या होगा? तो आपको दिख रहा है कि लगभग पॉइंट के जैसी इमेज बनी हुई है, पॉइंट साइज इमेज है. सो सन की जो इमेज बन रही है कैसे बन रही है यहाँ पर? अगर इफ़ यू कंसिडर सन इज अ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो ये जो है जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है? पॉइंट इमेज. सो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? डिमिनिस्ड. साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? डिमिनिस्ड हो जाएगा. ओके. पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? तो पोजीशन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बन रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ मिरर. क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ मिरर. सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? इन फ्रंट ऑफ मिरर. साइज क्या है उसका? डिमिनिस्ड.
साइज कैसा है उसका, डिमिनिस्ड। और जो नेचर होगा वो कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब दीज रेज आर एक्चुअली कटिंग ईच अदर सो डेट द इमेज फॉर्म इज रियल। रियल क्यों है ये, क्योंकि दीज रेज आर एक्चुअली कटिंग ईच अदर so the image is real. And why it is inverted, we will see when we move to the next points, that the image form is opposite to the object. object जो है उसकी उल्टी बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, inverted बोलते हैं। now move to a second. in second case our object, that upright arrow which is in a upward direction, that arrow is our object. So where is it situated, our object is situated beyond center of curvature. C is our center of curvature, so it is beyond center of curvature, or we can say that our object is in between infinity and center of curvature. Okay, now there are two rays we are taking. There are number of rays coming from this object, we are only taking the two rays. So first ray is coming parallel to the principal axis, and after reflection it will pass through the focus. ठीक है, दिख रहा है आपको, पहली रे जो आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है इसके। ओके, नाउ दिस इज आवर फर्स्ट रूल। नाउ टेक अ नेक्स्ट रूल। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट रूल, थर्ड वन, a ray which is passing through the principal focus after reflection it will go parallel to the principal axis. इसका मतलब ये है कि कोई रे जो है वो जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ओके, सो दीज टू रूल्स वी अप्लाई फॉर दीज टू रेज, एंड दीज टू रेज विल कट ईच अदर एट अ पॉइंट। यू कैन सी देर इज अ एरो विच इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिख रहा है आपको, एक एरो बन रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो कैसे बनाया अपन ने, जहाँ पर ये दोनों रेज क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। तो जहाँ पे दोनों रेज एक दूसरे को कट करेंगी वहाँ पर क्या बनेगी, इसकी इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, अपनी इमेज। ओके, सो यू कैन सी इजीली दैट what is the position of this image. So this image is formed in front of a concave mirror, okay, and in between center of curvature and a principal focus. What is the position? Position is in front of concave mirror. in front क्यों बोला, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इन फ्रंट। सो इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, ओके, और इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये तो इनकी क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी। ओके, नाउ सेकंड थिंग हमें बताना है साइज। तो साइज आप दिख रहा है आपको कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, छोटा है। तो अगेन वी कैन से दैट इमेज फॉर्म इज डिमिनिस्ड, क्योंकि उसका साइज कम है तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपन, डिमिनिस्ड बोलेंगे। तीसरा हमको बताना है इसका नेचर। तो नेचर कैसा होगा, आपको दिख ही रहा है नेचर क्या है। एक तो रियल है ये, बिकॉज रेज आर एक्चुअली कटिंग ईच अदर, सो इट इज रियल, एंड उल्टा बन रहा है, ऑब्जेक्ट का उल्टा बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। ओके, सो द इमेज फॉर्म इज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, it is real and inverted, and its size is diminished. So it is our second case. Now move to our next case, third one. थर्ड केस में क्या है, इन थर्ड केस हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आवर ऑब्जेक्ट इज एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोबारा आपको रूल लगाने, दो रूल लगाने। तो पहला रूल लगा दो एक तो, क्या, रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो पहला रूल तो ये लगा दो पहली रे के साथ, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, ठीक है ना। और दूसरा रूल लगा दो कि अ रे इज कमिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ऐसे करके आपको दो रूल लगाने इन दो रे के लिए। सो नाउ यू कैन सी डेट बोथ द रेज आर कटिंग ईच अदर एट अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज जस्ट एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर बट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ ये कहाँ काट रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर ही। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, देयर इज अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन दिस केस, सो यू स्पेशली यू हैव टू रिमेंबर दिस केस, केस नंबर 3, ठीक है। तो अब इससे जो इमेज फॉर्म होगी आप बता सकते हो इमेज का जो है पोजीशन क्या है। तो पोजीशन क्या होगी, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ठीक है, एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसकी पोजीशन हो जाएगी कि मिरर के तो सामने बनेगा और कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे।
ठीक है। दूसरा आपको बताना है साइज, तो आप साइज देख सकते हो, जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो आप क्या कहोगे, द सेम साइज एज अ ऑब्जेक्ट। और तीसरी चीज़ आपको बतानी है इसका नेचर। तो नेचर अब आप सिंपल आसान है बताना, द रेज आर एक्चुअली कटिंग ईच अदर सो डेट द इमेज फॉर्म इज रियल। एक्चुअली कट कर रही है तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है ना। और दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट की उल्टी बन रही है तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। okay, so this case is very important, you remember this case, you have to remember this case, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे अपन आते हैं तो अब की बार जो अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। कहाँ रखा हुआ है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, कहीं भी रख सकते हो आप, एट एनी प्लेस, इट डजेंट मैटर, एट अ मिड पॉइंट, कहीं भी आप सी और एफ के बीच में रख दो, ठीक है। वापस से दो रूल फॉलो करो। पहला रूल फॉलो करो, a ray coming parallel to the principal axis will pass through the principal focus, okay। now उसके बाद नेक्स्ट वाला रूल फॉलो करो कि a incident ray passing through the principal focus after reflection it will go parallel to the principal axis। दोनों रूल आप लगाओ। तो दोनों रूल लगाने के बाद these rays will cut each other at a point, this point is beyond center of curvature। दिख रहा है आपको, ये जहाँ पर कट करेगी ये जो पॉइंट है क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो इमेज फॉर्म होगी आप बता सकते हो उसकी पोजीशन, पोजीशन क्या होगी, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ठीक है, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन क्या होगी, मिरर के तो सामने होगा और सी के बाद होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी चीज़ आप क्या बताओगे, इसकी साइज बता दो। तो साइज आपको दिख ही रहा है, साइज क्या है, बिगर है देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज आप क्या बता सकते हो, लार्जर और बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा आपको बताना है इसका नेचर। तो नेचर में वही दो चीज़, एक तो ऑब्जेक्ट का उल्टा बन रहा है तो क्या बोलोगे, इन्वर्टेड, और रेज एक्चुअली कट कर रही है एक दूसरे को तो क्या होगी, रियल। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सो ये हमारा चौथा केस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है फिफ्थ। फिफ्थ में क्या कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, प्रिंसिपल फोकस पे ना। ऑब्जेक्ट इज एट अ प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी, देयर आर टू रेज आर कमिंग आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके। सो दीज टू रेज, जिसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये हमारा रूल है कि प्रिंसिपल फोकस से कोई रेज अगर आ रही है, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। तो बिल्कुल वही हो रहा है, देखो कोई ऑब्जेक्ट है उसने दो रेज इमिट करी हैं और ये रेज जब आई तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करा इन्होंने, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चली गई, ये पैरेलल चली गई। तो अब ये रे कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी आगे जाके, चाहे आप इसको इधर बढ़ाओ, इन फ्रंट ऑफ मिरर बढ़ाओ, चाहे बिहाइंड द मिरर बढ़ाओ, आगे या पीछे कहीं भी इन रेस को आप ट्रेस करोगे तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करने वाली। तो ना तो इसकी पीछे की तरफ इमेज बनेगी मिरर के, ना ही इसके आगे की तरफ इमेज बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं डेट इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। इस केस में क्या होगा, इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, और जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगी, ओके। तो ये केस हो गया हमारा जब ऑब्जेक्ट का रखा है, प्रिंसिपल फोकस पे रखा है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ केस, सिक्स्थ इज अगेन case number 3 and case number 6 is most important because there is a numericals on the basis of these cases। तो अब देखो 6 केस में ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी आपने रख दिया, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आपने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दिया, जो ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है ऊपर की डायरेक्शन में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगेन हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, वही रूल लगाने हमारे। तो देखो पहला रूल लगाओ कि अगर रे जो है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे रे आई पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इससे रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो ध्यान से देखो आप, ये रे आ रही है एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल एरो जो बना हुआ है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है। दिख गया आपको पहला वाला केस, ये पहली रे दिख गई, फर्स्ट रे। अब दूसरी रे देखो, दूसरी रे में कह रहे हैं कि व्हेन अ रे इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बट इट इज इंसिडेंटिंग नॉर्मली। तो ये कौन सा केस है, सेकंड वाला। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन पर अगर रे आ रही है, तो वो रे जो है वो जो मिरर है उस पर कैसी होगी, नॉर्मली फॉल होगी। कैसी फॉल होगी, नॉर्मली, ठीक है। रे जो आ रही है, अब इफ इट फॉल्स ऑन अ लाइन विच इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लाइन है उसी पर अगर ये रे फॉल हो रही है
तो ये मिरर के ऊपर कैसी होगी, नॉर्मली फॉल होगी। तो ये हमारा केस है जिसमें इंसिडेंट एंगल कितना जाएगा, 0, और रिफ्लेक्टिंग एंगल भी कितना होगा, 0। तो ये रे वापस इसी को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, अब क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर आप देखो, अगर इनको अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने की तरफ इन रे को अगर अपन बढ़ाएं, तो आगे अगर आप जितना भी बढ़ाओगे तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मिरर के सामने की तरफ अपन बढ़ाएं, अगर इधर लेफ्ट हैंड की साइड अगर अपन इसको बढ़ाएं, तो आगे जाके कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। पर अगर हम इन्हें बैक साइड में एक्सटेंड करें, यानी राइट साइड में एक्सटेंड करें, ठीक है, राइट साइड मतलब बिहाइंड द मिरर, तो अगर इस तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे तो हम लाइन जो बनाएंगे वो कौन सी लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्यों बनाएंगे, बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल टू एक्सटेंड इट बैकवर्ड। ठीक है, तो अगर आप इसको डॉटेड लाइन से पीछे बनाओगे तो दीज लाइंस विल कट ईच अदर, एक दूसरे को कहीं ना कहीं आके क्या करेंगे, ये कट करेंगे। तो जहाँ पर भी ये कट करेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज फॉर्म होगी। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है ये कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों, बिकॉज इट अपीयर्स, इट सीम्स टू कट ईच अदर। ओके, दे आर नॉट एक्चुअली कटिंग ईच अदर, बट दे आर सीम्स और अपीयर्स टू कट ईच अदर। तो इसलिए जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और बिकॉज वर्चुअल बन रही है इसी कारण से इसको किससे बताया गया है, डॉटेड लाइन से बता रखा है इन्होंने। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछे कि भाई पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, इमेज की पोजीशन बताओ कहाँ पर है, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, समझ में आ गई बात, बिहाइंड द मिरर। दूसरी चीज़ आपसे पूछे कि साइज़, तो साइज़ आप क्लियरली देख सकते हो कि साइज़ क्या है, इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। जो साइज़ है वो कैसा है, इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड है, कि जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का आपको क्या दिखेगा, बड़ा साइज़ दिखेगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तीसरी चीज़ आपसे पूछे कि इसका नेचर बताओ, तो नेचर में आप क्या बताओगे, तो आपको दिख रहा है नेचर क्या होगा इसका, एक तो ये इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। और दूसरी बात, ये जो इमेज है वो क्या है, अपराइट है या इरेक्ट है, क्या बोलेंगे इसको, इरेक्ट, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, इरेक्ट या अपराइट। सो दीज आर द 6 केसेस एंड दीज आर द 3 रे डायग्राम्स फॉर द image formation by a concave mirror. So amongst all these 6 cases, case number 3 and case number 6 is very important. So when you go through this video, listen this video carefully, and wherever you find a problem you will message me, or you can message me on a WhatsApp, you can contact me and you can ask any question. Okay, thank you. Hello dear students, in this slide we will see the image formation by a convex mirror and various uses of concave mirror and a convex mirror. So in case of a convex mirror we have only 2 cases. So remember that convex mirror is a diverging mirror. Convex mirror is a diverging mirror. It will diverge a incident light. So in our first case, when the object is at infinity, so when the object is at infinity, the rays coming are parallel to each other, the incident rays are coming are parallel to each other, and they are appears to meet at the principal focus. Okay, so when the rays are coming from the infinity, they are appears to meet at a principal focus. So because they meet, it appears to meet at a principal focus, so that the image form is virtual. Okay, and its position is behind the mirror. Okay, so it is virtual, erect, and its position is behind the mirror, and it is extremely diminished. Now in second case is when the object is situated behind the infinity and the pole. Okay, object जो है, that object is in between infinity and pole और infinity के बीच में आपको object रखा हुआ है, जैसे second diagram में बताया हुआ है. Okay, so there are 2 rays. So first ray is coming parallel to the principal axis. So when it incident, it diverges. देखो पहली रेस देखो, first ray is coming from parallel to the principal axis. So after incidenting on the mirror, it diverges. Now if you extend it in a backward direction, it appears to pass through the principal focus of a convex mirror. Okay,
when you extend it in a backward direction, it will appears to pass through the principal focus. So this is our first ray. Now the second ray. Now the second ray is incidenting on a line which is passing through the center of curvature. Okay, so as we already know that the line which is passing through the center of curvature is normally on the मिरर. जो लाइन पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो जो है वो नॉर्मल होती है मिरर के ऊपर. ओके, और अगर यहीं पर ही ये सेकंड रे हमारी आ रही है, तो ये सेकंड रे जो होगी वो क्या होगी, नॉर्मली इंसिडेंट होगी किसके ऊपर, मिरर के ऊपर. सो दिस सेकंड रे विल इंसिडेंट नॉर्मली on a mirror. Okay, now so that again the incident angle becomes 0 and it will retrace its path, reflect back on the same path. पर अगर हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाएं, जो कि डॉटेड डॉटेड बना हुआ है, when we trace it, when we extend it in a backward direction, it will cut, it appears to cut a first ray, it appears to cut a first ray. So you can see that where these two rays are appears to cut each other, the image will form. So because they are appears to cut each other, so that they are denoted by a dotted line. So as you see that the image form is diminished, the size of image is diminished, the position of image is it is the image form behind the mirror. The nature of an image is the image is erect, okay, and virtual. The nature of an image is virtual and erect, and its size is diminished. Okay, so these are the two cases of a convex mirror, when the object is at infinity and when the object is in between infinity and a pole. So these are the two cases, and from these two cases a second case is very important. So now we will see what is the uses of a concave mirror. So there are different uses of a concave mirror. First use is they are uses as shaving mirrors. So in shaving mirrors, concave mirrors are used. Why? As you see image formation by a concave mirror in a sixth case. In sixth case, when the object is in between pole and the principal focus, the image form is virtual, erect and enlarged. Okay, so because of this reason, in a shaving mirrors we use a concave mirror. Next is they are used as reflectors in car headlights, searchlights, torches and table lamps. Why? We see a case when the object is at a principal focus. So when a object is at a principal focus, then what happen in that case? In that case, when the rays are coming from the principal focus, after incidenting on a mirror, they will go parallel to the principal axis, so that the strong beam of light we will get by a concave mirror. So there are different applications and different uses of a concave mirror. Now we move to a convex mirror. So convex mirror we see in a second image formation by a convex mirror. In a second case, when the object is in between infinity and a pole, we see that image form is diminished, it is virtual and erect. So we use a convex mirror in a side mirror of a car, or a vehicle. By using a convex mirror, we increase the area, so large number of vehicle we can see in our mirror, and because of this reason we use a side mirror as a convex mirror. Okay, so these are the applications for a convex mirror and a concave mirror. Hope you all understand the applications. Thank you.